نیوز پہنچائے گا ہر خبر آپ تک۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اسلم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں CNBC۔ اس وقت میں موجود ہوں اورنگی ٹاؤن الطاف نگر میں، اور یہاں پہ 14 اگست کے حوالے سے ایک پروگرام منعقد کیا گیا جو کہ جس تو آزادی کا دن ہے اور ہمارا پاکستان کو آزاد ہوئے 79 سال ہو چکے ہیں، اور یہاں پہ اسی حوالے سے ایک تقریب منعقد کی گئی۔ آئیے لے کر چلتا ہوں اور آپ کی گفتگو کراتا ہوں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں یہاں پہ۔ آئیے لے کر چلتا ہوں آپ کو۔ سر، کیا کہیں گے آج جو 14 اگست کا دن ہے، بڑا مقدس دن ہے، اور پاکستان کے لوگوں کے لیے کیا پیغام دیں گے آج پاکستان کے لوگوں کو؟ پاکستان کے لوگوں کو امن کا ہی پیغام دیں گے، امن کا پیغام دیں گے پاکستان کے لوگوں کو۔ اور کریم اللہ بھائی، آپ لوگوں کو بھی بہت اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے پاکستان 14 اگست کے دن جو ہے اتنا اچھا پروگرام رکھا ہے، ہمیں دلی خوشی ہوئی ہے اس سے۔ ہم یہی اپنے عوام سے بھی کہیں گے کہ بس پاکستان ہے تو ہمیں پاکستان، ہم لوگ جو میں خود بھی جو ہے اس چیز کا بہت قائل ہوں کہ پاکستان کے لیے ہی ہمیں کام کرنا ہے، اور پاکستان کے لیے ہی جینا ہے، پاکستان میں ہی مرنا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ جی، بڑا خوبصورت پیغام دیا کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اور پاکستان کے لیے جینا ہے اور پاکستان کے لیے مرنا ہے۔ یہی سب سے بڑی خوبصورتی ہے ایک ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلمان، کیونکہ اگر ہم پاکستانی کی بات کروں، ایک مسلمان کی بات کروں، کہ جذبہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو فوجی کھڑے ہوتے ہیں بارڈر پہ، جس کی وجہ سے ہم راتوں میں آرام سے سوتے ہیں، ہم ہر پاکستانی ان کے ساتھ۔ آئیے چلتا ہوں لے کر اور آپ کی گفتگو اور بھی مہمانوں سے کراتا ہوں کہ کیا پیغام دیں گے آج پاکستان کے حوالے سے، جس طریقے سے آج تمام پاکستان اور کراچی شہر کے اندر پرچم کشائی ہو رہی ہے، اور یہاں بھی ہوگی۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جس طریقے سے مہمان ہیں، آئیے آپ کی گفتگو کراتا ہوں۔ اچھا، ہمارے بہت پیارے دوست ہیں سلیم اللہ صاحب، جو کہ جن کا تعلق میڈیا سے ہے، اور انہوں نے آج اس پروگرام کے انعقاد کیا، جس میں بڑے مہمان گرامی کے بلوایا، بڑی دور دور سے لوگ آئے، اور پرچم کشائی بھی ہوگی یہاں پہ، اور بچوں کو ٹیبلیں بھی آپ نے دیکھا۔ تو کیا کہیں گے سلیم اللہ بھائی آج پاکستان کے حوالے سے، جس طریقے سے 79 سال ہو چکے ہیں آج پاکستان کو بنے ہوئے، تو کیا پیغام دیں گے ہماری پاکستانی قوم کو؟ جی سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ تمام ہمارے صحافتی حلقے میڈیا برادری کا، اور ساتھ ہی ساتھ آج کی اس خوبصورت تقریب جو کہ 79 جشن آزادی پاکستان یہاں اس وقت اورنگی ٹاؤن میں گلشن ضیاء میں منایا جا رہا ہے، اور اہلیان محلہ کی بھی ایک بڑی تعداد ہے جو یہاں آج کی اس ایونٹ کے حوالے سے ان کا اپنا اپنا کردار ہے، وہ یہاں شریک ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں مختلف جو جماعتیں ہیں، یہ یقیناً ایک خوبصورتی کی علامت ہے۔ اس وقت یہاں UC1 اورنگی ٹاؤن سے شرجیل صاحب ہیں، فنکشنل لیگ سے، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے فرحات صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی بلدیہ ٹاؤن UC1 سے نجم شہریار اور سراج الدین صاحب یہاں پہ موجود ہیں اپنی ٹیم کے ہمراہ۔ ہم ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وطن عزیز پاکستان ہم سب کی جان، شان اور آن ہے، اور یقیناً یہ وہ عرض وطن ہے کہ جو یقیناً ہمارے آباء و اجداد نے لاکھوں جانیں قربان کی، اور ان لاکھوں جانوں کی قربانیوں کا ثمر ہے یہ وطن عزیز پاکستان۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اس وطن عزیز پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا جو پیغام دیا سلیم اللہ نے اور وطن عزیز کے لیے، کیونکہ جس طریقے سے پاکستان بنا، اور ان کا کہ ہزاروں قربانیاں، لاکھوں کے حساب سے قربانیاں دی گئی، یہ پاکستان ہمیں ایسے نہیں ملا جس طریقے سے آج ہم سوچتے ہیں، شور گل کرتے ہیں، جو کہ ہمیں آج کے دن پہ بڑے احترام اور عزت سے منانا چاہیے۔ جس طریقے سے آج یہاں پہ پرچم کشائی بھی آپ دیکھیں گے کہ جب لہرا جائے گا، تو ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہیں، آئیے پوچھتے ہیں کیا کہیں گے آج اس کے حوالے میں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد عتیق ہے، اور میں UC1
फंक्शनल लीग से अतीक भाई ताल्लुक़ क्या है। कहेंगे अपनी फंक्शनल लीग के हवाले से, जबकि आपकी जमात की एक और भी है जो कि बॉर्डर पे लड़ती भी है, तो क्या कहेंगे आप? बस इसके लिए यही कहेंगे कि जिस तरह के हमारी पार्टी की और जो आपको पता है कि बॉर्डरों पे लड़ रही है, मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा, अपनी आवाम को, नौजवान नस्ल को, कि वो भी इसी तरह अपने आप में जो जज्बा जोश जो है वो तकरीबन भरपूर रखें। और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले तो सभी हैं और हम सब पाकिस्तानी, हमारे आबो अजदाद ने यकीनन आप जो जैसे कहा कि भाई बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और इसको बड़ी मुश्किलों से हासिल किया है। अब हमारी कौम का, हमारे नौजवान नस्ल को सब कुछ छोड़कर ये जज्बा रखना चाहिए कि वो इस वतन की हिफाजत करे, इस वक्त में अपनी तामीर और तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा करें, समझे। और पार्टी के जितने लोग हैं, जो पार्टियाँ काम कर रही हैं, मेरी उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने आपस के मामलात को तकरीबन दरगुजर करके और इलाके, मोहल्ले, मुल्क और कौम के लिए सोचें, ना कि अपने मफाद, अपने मामलात के लिए सोचें, ताकि मुल्क और कौम तरक्की कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। जी, अपने लिए और अपनी कौम के लिए सोचे, यही सबसे बड़ी पाकिस्तानियत। और हर मुसलमान की एक पहचान यही होती कि हम अपने पाकिस्तान के लिए पूछे। तो मेरे साथ और एक मेहमान आई, पूछते हैं कि सर क्या नाम है आपका? शर्जील सर लतीफ़। भाई क्या कहेंगे, आज छोटा सा पैगाम क्या देंगे? सर मैं तो यही कहूँगा कि माशाल्लाह से जो प्रोग्राम रखा गया आज बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है। इस पे ये दिखा दिए कि ये कौम यकजहती की कौम है, ठीक है, यकजहती यहाँ पे दिखा दी है। यहाँ पे हमारे मेहमान खुसूसी पीपल्स पार्टी के लोग भी आए हुए, MQM पाकिस्तान से भी आए हुए, और भी जमातों से आए हुए। तो जिस तरीके से हम लोग इत्तेफाक कर रहे हैं, अगर इसी तरीके से हम इत्तेफाक इस मुल्क के लिए करें तो इंशाल्लाह हम लोग तरक्की करेंगे। सबसे पहले तो असलम भाई आपका बहुत शुक्रिया, तमाम मीडिया पर्सन्स का बहुत शुक्रिया कि आप लोग औरंगी टाउन के गुंजान आबादी गाज़ियाबाद में तशरीफ़ लाए हैं। और ये एक मीडिया पर्सन्स पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो काबिल एहतराम इसलिए भी हैं कि वो अपनी सारी परेशानियां, दुख दर्द को भूल कर, जान का रिस्क लेकर उन जगहों पर पहुंचते हैं जहां पर आम आदमी तसव्वुर नहीं करता, कोई बहुत बड़ा हादसा सानिया हो जाता है। लेकिन आप लोग को खराज तहसीन में पेश करूंगा सबसे पहले, और उसके बाद आज की जो तकरीब है सलीमुल्लाह भाई, नुमान भाई की माशाल्लाह मीडिया एसोसिएशन की है और लोकल बॉडी रिपोर्टर्स की है माशाल्लाह, और रोशन पाकिस्तान के हवाले से जो लोग हैं ये बहुत ही ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, चूँकि इन्होंने एक ऐसे इलाके में आज जश्न आज़ादी का ये प्रोग्राम अरेंज किया है जिस पे तमाम बच्चे भी यहाँ के बहुत खुश हैं, परफॉर्म्स अपनी पेश कर रहे हैं, और कुछ हो गई हैं, कुछ होने वाली हैं इंशाल्लाह। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई है, फ़नकारों को स्पेशली, आज सारे बिज़ी हैं लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ आया हूँ, बाकी इसके बाद मैं कहीं और जाऊँगा। और मैंने 1 या 2 इवेंट जो है अभी मेरे और भी हैं, लेकिन इस प्रोग्राम के लिए मैंने एक इवेंट छोड़ा भी है, बिकॉज़ ये मेरा अपना औरंगी टाउन जो है इससे मैं ख़ुद बिलोंग करता हूँ। तो अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, पाकिस्तान को सलामत रखे, और पाकिस्तान पर बुरी नज़र डालने वालों को अल्लाह ताला निस्तो नाबूद करे। हमेशा हमारी कौम की, अवामुन्नास जो पाकिस्तान की कौम है, उसकी यही दुआ है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह अगर हम जितनी भी हमारे आपस में दिलों में नफ़रतें हैं, हसद है, जलन है, अगर हम इन को एक कोने में रख कर तमाम ज़बानें बोलने वाले एक जगह जो है यकजा हो जाएं, तो ये ख़ुद ही शर्मिंदा हो के कहीं ख़त्म हो जाता है, ये चारों पांचों चीज़ें। तो हमें एक होने की ज़रूरत है, इत्तेफाक इत्तेहाद से रहने की ज़रूरत है, ताकि हमारा मुल्क पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला अमेरिका से भी ज़्यादा तरक्की करेगा, एक ना दिन आएगा, ज़रूर आएगा। बहुत शुक्रिया आपका, सलामत रहें। मैं MQM पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है और मेरा नाम फरहाद है, UC इंचार्ज हूँ मैं, ठीक है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा इस मौके पर कि 14 अगस्त जो हम सबको मिल के मनाना चाहिए। जिस तरह भी नुमान भाई ने ये प्रोग्राम रखा है, बहुत खुशी हुई कि सबको उन्होंने बुलाया, किसी को ये नहीं सोचा कि यार वो किसी पार्टी के हैं, वो किसी पार्टी के हैं, लेकिन उन्होंने ये काम बहुत अच्छा किया, हम सबको एक जगह खड़ा कर दिया। तो इसी बस इतनी ही बात कहूँगा कि इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो आने वाला साल जो है हमारे लिए इससे अच्छा होगा, और बस मैं इतने ही कहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। पाकिस्तान पाइंदा पसंद। अच्छा, इस तकरीब के बारे में अगर मैं बताऊँ तो इस तकरीब के दूल्हा हैं ये दोनों आज, जिन्होंने इस तकरीब को सजाया है इतनी खूबसूरती से, और ऐसे इलाके के अंदर जहाँ पे आना मुश्किल है। तो हमारे साथ नुमान मौजूद हैं, आइए पूछते हैं क्या कहेंगे आज इस मुक़द्दस दिन के हवाले से। और इसको 14 अगस्त का दिन है और परचम भी लहराया जाएगा, तो क्या पैगाम देंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों का, ख़ास तौर पे आप असलम भाई CNBC न्यूज़ का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि आप इतने दूर हमारी खातिर, हमारी वजह से आए।
लाजमी सी बात है, ऐसे इलाकों के अंदर लोग वीराने पड़े हुए हैं, लोग इतने अवेयरनेस नहीं है, लोग बाहर जाने की कोशिश करते हैं ये सब देखने के लिए। तो मैंने और सलीम भाई ने और हमारी टीम ने ये सोचा कि इलाके के अंदर ऐसा कुछ करें ताकि रौनक लगे और लोग इधर जमा हो, लोगों को भी पता चले कि यार इलाका भी है ज़िंदा और लोग भी यहाँ पे जानने और पहचानने वाले लोग हैं जो एक साथ काम करना चाहते हैं मिलजुल कर। इसकी बहुत कमी है हमारे शहर में। आज 13 अगस्त का दिन है, सारी सेलिब्रेशन का दिन है, हर जगह सेलिब्रेशन हो रही है, लोग दूर दूर जाते हैं। हमने सोचा है इस गुलशन ज़िया इलाके के अंदर जो है ना ये तकरीब का आगाज़ करें, केक कटिंग और परचम खुशाई का, ताकि लोग जमा हों, थोड़ी सी एक बहुत अच्छी रोशनी की शहर, रोशनी की गली बने ये गुलशन ज़िया। जी नाज़रीन, आपने देखा कि जिस तरीके से यहाँ पे, और एक चीज़ और बताता चलूँ, यहाँ कराची शहर के अंदर जिस तरीके से यहाँ पे आज इन्होंने तमाम पार्टियों को इकट्ठा किया, चाहे वो MKM पाकिस्तान हो या पीपल्स पार्टी हो या पीर पगाड़ा ग्रुप हो, तमाम पार्टियों को यहाँ पे एग्जेक्ट किया। और हर किसी का कहना है कि तमाम पार्टियाँ अपनी तमाम चीज़ों को, पार्टी को अलग रख कर पाकिस्तान के लिए काम करें, पाकिस्तानी लोगों के लिए काम करें, तो शायद हमारा पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़, कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।